Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Shilpa Maheshwari and I'm welcoming you all on my YouTube channel. So today we will study about coordination and the subordination. So before starting the video, I just want to say something that don't forget to hit the bell icon and don't forget to subscribe to my channel so that you can get all the latest updates. Thank you. So let's begin now. Okay, so let's start from the coordination first. So as you know that this word already tells its meaning. Like coordination means to joining something or to joining something like the independent clause to the dependent clause. So here we will have two independent clause and we will join them. So let's read the definition of coordination. Coordination joins two independent clause that contains related ideas of equal importance. So let's say इसमें क्या कहता है हमें कि कोऑर्डिनेशन यानी कि दो ऐसे सेंटेंस को आपस में मिलाता है जिनके आइडियाज़ जिनकी जो मीनिंग आपस में डिफरेंट हो, तो उन चीज़ों को आपस में वो मिलाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द ओरिजिनल सेंटेंस आई हैव रिटन हियर, आई स्पेंट माई एंटायर पे चेक लास्ट वीक. ठीक है, मैंने अपना पूरा पे चेक जो था वो ख़त्म कर दिया लास्ट वीक. आई एम स्टेइंग होम दिस वीकेंड. मैं इस हफ्ते घर पर ही रहूँगा या रहूँगी. So now we have these two independent clauses, but as we see, we can join these sentences. So in their current form, these sentences contain two separate ideas that may or may not be related. Am I staying home this week? Because, so here the word because is the coordinate, यानी कि ये जो क्या करता है दोनों सेंटेंस को आपस में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है. Because I spent my paycheck, or is there another reason for my lack of enthusiasm to leave their house. To indicate a relationship between the two ideas, we can use the coordinating conjunction. So अच्छा, तो हमें अगर दो सेंटेंस को आपस में मिलाना है या उनकी रिलेशनशिप आपस में ज्वाइन करना है तो फिर हम कोऑर्डिनेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का. सो रिवाइज्ड सेंटेंस हमारे पास क्या बनता है, I spent my entire paycheck last week, so I am staying home this weekend. मतलब वो कहता है कि मैंने अपना खर्चा कर दिया पूरा, यानी कि उसने पूरा जो चेक था वो ख़त्म कर दिया, खर्च कर दिया, तो अब इस वीकेंड वो घर पर ही रुकेगा, घर पर ही ठहरेगा. तो ये हमारा रिवाइज्ड सेंटेंस बन गया. सो लेट्स रीड द रिवाइज्ड सेंटेंस illustrates that the two ideas are connected. Notice that the sentence retains two independent clauses. So simply we can say that two independent sentence, we are here to join the two independent sentence with each other. Like I spent my entire paycheck, I am staying home this weekend, because each can stand alone as a complete ideas. अब हम अगर देखें तो इन दोनों सेंटेंस की आपस में अलग भी मीनिंग बनती है. अगर हम अलग अलग लिखें, सेपरेटली लिखें, सो doesn't mean that sentence is wrong, sentence is still right. But if we are coordinating the sentence, then its meaning will be changed. Okay, so now next slide. Now we have coordinating conjunctions. A coordinating conjunction is a word that joins two independent clauses, as we have studied before in the first slide. The most common coordinating conjunctions are fanboys. अगर हम इसको इस तरीके से याद करें तो अगर आपको कंजक्शंस हमारे याद हों तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को भी इजीली गेन कर सकते हैं. तो फैन बॉयज़, इसका एक सिंपली फॉर्मूला है फैन बॉयज़, यानी कि F स्टैंड्स फॉर एंड, नोर, B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट एंड बॉयज़ का जो S है वो स्टैंड करता है सो के लिए. सो दिस वॉज द टिप ऑफ दैट, यानी कि ये इसकी टिप थी. तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और एक कॉमा यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को आपस में सेपरेट और ज्वाइन करने के लिए. Okay, so here you can see slide bit view of the independent clause and coordinating conjunction, and then joining up the two sentences, the revised sentence. You can take over that, यानी कि आप इसको जब आराम से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. Okay, so now we have the subordination. Now हमने coordination तो पढ़ लिया, अब subordination क्या होता है.
सबऑर्डिनेशन की मीनिंग क्या होती है? जॉइंस टू सेंटेंस विथ रिलेटेड आइडियाज बाय मर्जिंग देम इनटू मेन क्लोज, यानी कि आपस में ऐसे सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है जिनकी जो थोड़ी सी मीनिंग आपस में रिजेंबल करती हो, ठीक है। पर सेंटेंस बनाने से पहले जो पहले एक फर्स्ट ओरिजिनल सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप के ज़रिए आपस में स्टॉप होता है, उसके बाद उसको ज्वाइन किया जाता है। वो ज्वाइन इस सूरत में होता है कि उनके दोनों के सेंटेंस की मीनिंग आपस में रिलेट करती हो। सो लेट्स टेक अ व्यू ऑन द ओरिजिनल सेंटेंस। ट्रेसी स्टॉप्ड टू हेल्प द इंजर्ड मैन। ट्रेसी ने एक ज़ख्मी आदमी की मदद करने से खुद को रोक दिया, यानी कि स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। शी वुड बी लेट फॉर वर्क। अब हम ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस कि ट्रेसी ने मदद करने से मना किया क्योंकि उसको काम के लिए देर हो रही थी। तो रिवाइज्ड सेंटेंस हमारे पास क्या बनता है? इवन दो ट्रेसी वुड बी लेट फॉर वर्क, कॉमा शी स्टॉप्ड टू हेल्प द इंजर्ड मैन. So this is the revised sentence. You can go through it again and again. Okay, so now here we have the main point of that. Coordination allows a writer to give a equal weight to the two ideas that are being combined. And subordination, अच्छा coordination writer को किस चीज़ में मदद करता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में वो ज्वाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन सबऑर्डिनेशन में क्या होता है? enables writer to emphasize on idea over the other, यानी कि राइटर की ये मदद करता है कि वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के ऊपर टेक ओवर कैसे करे, दोनों आइडियाज़ को आपस में मिलाए कैसे, ठीक है। तो इसलिए हम इसके थोड़े से अलग से जो बीच में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो आपस में दोनों आइडियाज़ को आपस में बिल्कुल ही जॉइन करते हैं। ओके, सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अल्दो, वाइल, अच्छा ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के लिए, कंडीशन के लिए, मैनर के लिए, प्लेस के लिए, रीज़न एंड टाइम। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम जो कंजक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से एग्जांपल्स भी आगे लिखे हुए हैं। यू कैन गो थ्रू दिस एग्जांपल्स, राइट। थैंक यू। So thank you so much all of you. If you are learning something from my video, so please subscribe and do share my channel with your friends and colleagues, and please pause the video if you want to get some meaningful information. Thank you so much. And one more thing, if you have any confusion, any question, then you can throw your question, you can drop your question in the comment section. I'll be always present for you all. Thank you so much. Thank you.